साथियों नमस्कार। आज हम मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों सरसा जिला के कई गांव में सैकड़ों एकड़ फसल गेहूं की बिजली की तारों में स्पार्किंग होने की वजह से जल चुकी है। तो इस बाबत मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो आज हमारे साथ में अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कामरेड सुरजीत सिंह, उनसे कुछ सवाल कुछ चर्चा किसानी मुद्दों को लेकर के की जा रही है। कामरेड साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कामरेड साहब, आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जी.डी. वैंस भारत का दौरा कर रहे हैं। हाँ जी। तो पीछे भी एक समझौता हुआ था ट्रंप और मोदी का, तो इस समझौते को आप किस दृष्टि से देखते हैं खेती किसानी के मामलों को लेकर के? इस तरह ही इस समझौते ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਜਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਦਾ, 10 ਏਕੜ ਦਾ, 20 ਏਕੜ ਦਾ, 50 ਏਕੜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਕਾ, ਕਣਕ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ नहीं करने चाहिए। इन्ना कुछ कहते हुए धन्यवाद सुरजीत सिंह जी। और सुरजीत सिंह ने तो सारे इस पक्ष पर क्या नाम एक भूमिका सी बना दी, एक निबंध सा उतार दिया। तो इसके बहुत सारे क्या ना बिंदु है, इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ में है राजकुमार शेखुप्रिया। मैं उनसे जानना चाहूँगा, बारी बारी मैं बता देता हूँ इनको, खेती पर इस समझौते का क्या असर पड़ेगा। खेती के अलावा पोल्ट्री फार्म है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मूल हिस्सा है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है क्या पशुपालन, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले खेतीबाड़ी पर क्या असर जाएगा इस पर? देखिए ओम प्रकाश जी, कि सवाल ये है कि अमेरिका आज जिस रूप से भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता चाहता है, कि वो चाहता है कि तमाम कृषि उत्पादों के लिए भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार खोल दे। जबकि भारत में आज भी भारत के किसान ने जितनी मेहनत की, आप इस मंडी को देखोगे चारों तरफ, आपको मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि चारों तरफ गेहूँ के ढेर लगे हुए हैं। किसान ने यहाँ इतनी गेहूँ का उत्पादन कर दिया कि अब एक बार दौर में कहते थे कि भारत में उत्पादन जो है गेहूं का बहुत कम है, अमेरिका में 90-100 एकड़ 100 मन तक प्रति एकड़ चला गया। जबकि आज इस बार भारत के किसान ने, विशेषकर हरियाणा और पंजाब के किसान की मैं बात करूंगा, कि 80 और 85 मन तक की गेहूं प्रति एकड़ यहाँ के किसान ने निकाल दी। अब वो इतना उत्पादन जब हुआ है तो निश्चित तौर पे ये भारत की
अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के ग्रामीण की भूख और मिटाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। लेकिन क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन जा रही है, तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ का जो माल है, कृषि उत्पाद हैं, विशेषकर गेहूँ है, मक्का है, जौ है, दालें हैं वगैरह, वो भारतीय बाज़ार में आ जाए और बिना कस्टम ड्यूटी के वो आ जाए। वो चाहता है कि भारत कस्टम ड्यूटी को कम कर दे, जिसके चलते वो अपने किसानों को और ज़्यादा राहत दे पाए। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका में बड़े किसान हैं, 600,000, 2,000, 5,000, 20,000 बड़ी एकड़ के जोत के किसान हैं। हिंदुस्तान में 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ के किसान हैं, बहुत छोटी जोत के किसान हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि अमेरिका के अंदर कॉटन की खेती करने वाले 6,000 किसान हैं और भारत के अंदर कॉटन की खेती करने वाले 28-30 लाख किसान हैं। नहीं, इसको थोड़ा दुरुस्त करिए। अमेरिका में जो टेंटेटिव आंकड़ा है वो 8,000 से 10,000 के बीच में किसान कॉटन की खेती करते हैं, और हिंदुस्तान में लगभग 90 से 95 लाख किसान कॉटन का खेती करते हैं। अब सवाल यही है ना कि वहाँ 1 एकड़ के लिए अमेरिकी सरकार जो है वो लगभग $1 लाख की सब्सिडी प्रति एकड़ देती है, जबकि भारत के किसान की देखेंगे हम तो भारत में 28 से $30 प्रति एकड़ किसान को सब्सिडी मिलती है। वो भी अब ये नई जो आर्थिक नियम से जो सरकार ने लागू कर लिए, उसके बाद उनमें भी बहुत बड़ा झोल आ गया। वो पूरी किसान तक नहीं पहुंच पाती, उसमें भी बहुत सी कंपनियों को और इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं को चले जाती है, किसान तक नहीं पहुंचती। इसलिए पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर ये कृषि उत्पादों के लिए भारत सरकार खोल देती है, अमेरिका की कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाज़ार, उसकी कस्टम ड्यूटी घटा देती है, तो भारतीय किसान जिस एक MSP के लिए लड़ रहा है, MSP के लिए इसीलिए लड़ रहा है ना कि हम गेहूं पैदा करते हैं, तो हमें अगर ये श्योरिटी हो कि हमारी गेहूं 2800, 2500, 2400 इतने रुपए क्विंटल हमारी हर हाल में बिक जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी, तो वो पैदा कर रहा है और वो यही गारंटी चाहता है कि उतना बना रहे, तो वो किसान में इसमें लगा रहेगा। और खेती एक ऐसा सेक्टर है जो आज के दिन हिंदुस्तान में लगभग 60 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार देता है, और लगभग 15 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं, 15 से 20, जो इनडायरेक्ट रूप से खेती के साथ रोजगार पाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाएगा, और निश्चित तौर पे वो जो छोटा किसान है वो इससे खेती से बाहर होकर, जो बार बार भारत सरकार ने भी कहा और वर्ल्ड बैंक का भी दबाव है कि भारत सरकार हिंदुस्तान के किसानों को उजाड़ के गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट करे, ये उसी का एक अगला कदम होगा। निश्चित तौर पे ये भारत के किसान के लिए, इस विशेषकर गेहूं, चावल, आपका मक्का, बाजरा, जो वगैरह उत्पाद करते हैं, उन किसानों के लिए ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ जाएगा। दूसरा, कृषि के साथ साथ एक किसानों का एक सहायक धंधा है पोल्ट्री का। ये बड़े बड़े अपने इलाके में भी बड़े बड़े फार्म हाउस पोल्ट्री के बना रखे हैं, तो इस पर इसका क्या असर जाएगा इस समझौते के चलते हुए? देखिए, यही पक्ष पोल्ट्री के सवाल के ऊपर है। भारत में जो पोल्ट्री का उत्पाद जो किसान है, वो पोल्ट्री के किसान को उतनी सब्सिडी नहीं मिलती जितनी अमेरिका में मिलती है। एक तो अमेरिका में पोल्ट्री का विशेषकर ध्यान करने की बात है कि अमेरिका पोल्ट्री के सवाल पे भारत के साथ इसलिए समझौता चाहता है कि भारत के अंदर लोग जो है पोल्ट्री के लेग पीस को ज़्यादा पसंद करते हैं। अमेरिका के अंदर ये है कि वो उसके लेग पीस उसकी वेस्टेज है, वो सोचता है कि ये वेस्टेज है, और वो चाहता है कि भारत में अगर समझौता हो जाए तो भारत के लोगों को लेग पीस पसंद है, तो वो अपने देश का वो जो वेस्टेज है उनके लिए लेग पीस, वो भारत के लिए एक बहुत मजबूत खाद्यान्न है। तो वो चाहता है कि भारत के साथ अगर पोल्ट्री में कोई ऐसा समझौता हो जाए, वो पोल्ट्री उत्पाद में सिर्फ और सिर्फ लेग पीस यहाँ निर्यात करना चाहता है, वो हो जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ के पोल्ट्री उत्पादक पे, किसानों पे बहुत बुरी मार पड़ेगी। पोल्ट्री के रेट एकदम नीचे आ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा पोल्ट्री के वहाँ के लिए। वो अपना वेस्टेज अपने देश में निकाल देंगे और अपना देश का किसान उनके वेस्टेज से मर जाएगा। ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण सवाल हमारे सामने पोल्ट्री के सवाल पे भी आएगा। तीसरा सवाल है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल जो क्या नाम है आधार है वो है पशुधन। आज भी अपना गांव में देखा तो हर एक किसान के पास 1-2 पशु मिल जाते हैं। और हरियाणा की विशेष करके मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, हरियाणा को तो मुर्रा भैंसों की खान बोला जाता है। यहाँ की भैंसों की बड़ी लाखों रुपए में कीमत है। तो इस पर इस समझौते का क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो आपने बात कही ना कि डेयरी फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग भी ना को सिंपल किसान का सहायक के तौर पर हर घर में 1-2 पशु हर किसान रखता है, सहायक धंधा है, और वो ये सहायक धंधा बन गया, और बिना कोई अलग से एनर्जी और अलग जगह किए बिना भी। आज के दिन हिंदुस्तान में
हर घर में से हर किसान परिवार लगभग 2, 4, 5 किलो दूध जो है वो बेचता है। उसके लिए वो घर चलाने का साधन बन गया। उस साधन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको अच्छे रेट मिले, उसको अच्छे रेट के साथ साथ उसको अच्छी नस्ल मिले ताकि ज़्यादा उत्पादन मिले। और क्योंकि उसके लिए पशुपालन इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि किसान जिस रूप से गेहूँ पैदा करता है, किसान के लिए पशु का जो सूखा चारा है वो जुटाना अलग से उसके लिए कोई खर्चा उस रूप का नहीं करना पड़ता। वो जो गेहूं की वेस्टेज जिसको आप कह लें, वो पशुओं का तूड़ा, वो पशुओं का चारा है और उस चारे को किसान प्रयोग कर रहा है। और अगर अमेरिका में जिस रूप का है वो बड़ी फार्मिंग है, वहाँ के जो पशु हैं वो पशु बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। भारत में उस रूप का तो दूध नहीं है क्योंकि वहाँ अमेरिकन गाय बोलते हैं। हाँ, जिसको आप अमेरिकन गाय बोलते हैं। वो अमेरिकन गाय 25 से 20 से 15 से 25-30 लीटर तक पर टाइम चली जाती है, 40 लीटर तक। अब वो जो है अगर वो डेयरी उत्पाद इस रूप के आएंगे तो उन उत्पाद से भारत का दूध का जो रेट है वो मरेगा। आज भी आप देखो कि हरियाणा में दूध के रेट्स इतना कुछ होने के बावजूद भी किसान को 60 से 65 रुपये भैंस के दूध के इससे ऊपर रेट नहीं मिलते। और गाय का दूध है वो जो है वो 25 से 30 और 35 रुपए आखिरी चला गया। जबकि भारत में तो एक तरह की एक बहस क्रिएट हो रही है कि गऊ को एक तरफ तो हम माता का दर्जा दे रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि गऊ का मूत्र जो है, पेशाब, वो बहुत कीमती है, वो 80 से 90 रुपए लीटर बिक रहा है। रामदेव बेचता है। और उसमें ये भी चर्चा है कि गाय के गोबर से जो है बहुत कीमती है, ये मकान ठंडे करते हैं, फलाना है, ढिमकाना है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मामला है, यूनिवर्सिटी में भी एक मामला है। वो एक स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल एक रूम को गोबर पूत रही हैं। सवाल ये है कि जब देश में गऊ को इतना बड़ा दर्जा दे दिया माता का, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसके दूध की कीमत नहीं है। उसके दूध के ऊपर अब जब आप चर्चा करोगे तो उसके दूध को कीमती नहीं माना जा रहा। अब ये बड़ा हैरानगी की बात है कि भी एक पशु का पेशाब जिसका इतना कीमती है तो क्या दूध तो उसका कई गुना कीमती होगा, तो उसके रेट तो ज़्यादा होने चाहिए। उसके रेट जो आज के दिन गाय के दूध के रेट 35 और 40 रुपए से ऊपर नहीं है। जबकि आप कुछ ये जो बोतलबंद पानी बेचती हैं, जैसे बेदिका एक कंपनी है जो पानी बेचती है, बेदिका कंपनी की बोतल होलसेल रेट 63 रुपये लीटर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 63 रुपये लीटर वाला पानी और कहाँ गाय का दूध, दोनों में कितना डिफरेंस है। अब अमेरिका जो इतना दूध उत्पादन करता है तो वो चाहता है कि उसका एक समझौता हो जाए और उसके डेयरी उत्पाद जब भारत में आएंगे, वो जितनी लेटेस्ट टेक्निक के साथ दूध को तैयार करता है कि उसका दूध 15 से 20 दिन तक अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे तो ख़राब नहीं होगा। उसकी लस्सी का है, वो अपना यहाँ घी बेचता है, वो अपने यहाँ दूसरे प्रोडक्ट भी उसके साथ पनीर वगैरह बेचेगा। तो इससे भारत में ऑलरेडी जो किसानों के पास पशुधन घटता जा रहा है वो और घटेगा और किसानों का सहायक धंधा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मेरा अपना गांव है जिसमें लगभग 400-450 घर हैं, 1750 के लगभग वोट है और गांव में कुल 1388 पशु है, जिसमें से 250 के लगभग गौशाला में, और ये भी 1388 सारे के सारे दुधारू नहीं है। अब जब आप इसका मूल्यांकन करोगे तो एक बड़ा सवाल आएगा और वो ये आएगा कि जब दूध के रेट गिर गए, दूध का रेट गिर गया और जब पशु की साम संभाल है उसके लिए खर्च बढ़ गया। आप देखो पशु के ऊपर प्रतिदिन 250 रुपये से ऊपर का खर्च है एक दिन का, तब जाके वो दूध मिलता है। तो फिर वो ये सोचता है कि अगर ऐसा है तो मोल का दूध सस्ता पड़ेगा, तो वो पशुधन धीरे धीरे किसान के हाथ से जा रहा है और वो जा रहा है तो किसान कर्जाई भी हो रहा है। मतलब वो अपना खेती से जो बचा के खेती को कर्जे में निकलने के प्रयास कर रहा था वो टूट रहा है। तो कुल मिला के ओम प्रकाश जी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका पोल्ट्री का आपने रखा, आपका ये जो दूसरे उत्पादों का रखा, आपने डेयरी फार्मिंग का रखा, अगर ये समझौता होता है तो ये खेती को पूरी तरह से हिंदुस्तान के किसान को तोड़ेगा। और ये मैं तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि ये जो भारत की मोदी सरकार ने एक प्रयास किया था 3 कृषि कानून लाने का, उन्हीं कृषि कानूनों को जिस रूप से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी उसका ये दूसरा रूप आ गया कि पूरी तरह से कृषि को उजाड़ने के लिए तरह तरह के वैकल्पिक तरीके ढूंढ रही है। और उसमें अभी ये इसके साथ की समझौते के साथ दूसरा भी आ रहा है कि ये जो APMC एक्ट द्वारा लेके आए, ये भी उसी का प्रयास है। तो ये जो सवाल आ रहे हैं, ये सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज मंडी में जो हम नज़ारा देख रहे हैं कि चारों तरफ जिधर भी देखोगे आप गेहूं से भरी हुई है पूरी मंडी।
अगर यहाँ की खेती उजड़ती है तो ये जो पूरी मंडी जिसने किसान को रोज़गार दिया, अब इस मंडी में इस वक्त जिस वक्त अपन रानिया मंडी में खड़े हैं तो इसमें केवल किसान को रोज़गार नहीं दिया, इस वक्त भी 50,000 के लगभग मज़दूर इस मंडी के इस काम में लगे हुए हैं कि इस गेहूं को बोरियों में भर के इनको गोदाम तक पहुंचाया जाए। उनका सबका रोज़गार मरेगा। इसके साथ जो यहाँ बाज़ार में दुकानें लगाए बैठे जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, उनका रोज़गार है, वो रोज़गार जाएगा। और कुल मिला के ये है कि ये जो मोदी साहब का एक फेवरेट नारा है कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया में वो सस्ती लेबर देने की बात कर रही है। तो किसान को उजाड़ के शहरों की तरफ शिफ्ट करके सस्ती लेबर बनाने के और अमेरिका के पूरी तरह से गुलाम होने की तरफ जा रहा है। और मैं तो एक बात कहूँगा कि जिस देश के पास खाद्यान्न उपलब्धता घट जाएगी वो देश गुलामी की तरफ जाएगा। आज यही हो रहा है कि यूरोपीय देशों में ज़्यादातर अमेरिका की गुलामी क्यों स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने पास खाद्यान्न का जुगाड़ नहीं है, वो अमेरिका से आयात करते हैं। तो वो अमेरिका कुल मिला के ये किस्म से नए एक युद्ध का दौर शुरू कर रहा है और हमारी सरकार उसके आगे पूरी तरह से समर्पण कर रही है। ये बहुत खतरनाक और बहुत चिंताजनक बात है। जो देशभक्ति का नारा तो लगा रहे हैं लेकिन असल में देश की जनता के साथ कुठाराघात भी कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि जो मोदी कह रहे हैं लोग हैं वो तो लोग मतलब कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा है। तो आप ये बता रहे हो, आप तो बड़ी खतरनाक बात बता रहे हो कि खेती मरेगी, पशुपालन मरेगा, पोल्ट्री फार्म मरेगा, तो फिर डंका किस बात का बज रहा है? देखिए, डंका देश में बेरोजगारी का बज रहा है। हमारी शिक्षा, आज के दिन बेरोजगारी का दर कितना बड़ा हो गया। आप देखो कि अगर देश में रोजगार होता तो आज ये जितने भी हुड़दंगी जो रोडों पे घूमते हैं, वो चाहे मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, तमाम तरह के लोगों की, अगर बेरोजगारी नहीं होगी तो इन राजनीतिक पार्टियों के पीछे लघु लोग नहीं बचेंगे, युवा नहीं बचेगा, वो अपराध के अंदर नहीं जाएगा, वो किसी एक की जय नहीं बोलेगा, तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। और आपा ये पूरा देश देख रहा है कि आज के दिन सांप्रदायिक दंगों का फायदा कौन ले रहा है। सांप्रदायिक दंगा करवा के सरकार, बीजेपी की सरकार ही लगी हुई पूरी तरह से वो रहेगी। तो डंका तो बेरोजगारी का बज रहा है और वो इसको बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा डंका बज रहा है कि दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो पढ़ाई में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई का बिल्कुल बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मतलब दुनिया हंस रही है कि भारत की कॉलेजेस के अंदर आज इस बात की बहस नहीं है कि नए बीज कैसे तैयार किए जाएं, किसान को ऊपर कैसे मजबूत किया जाए, देश को ऊपर कैसे लाया जाए, इसकी रिसर्च वर्क नहीं है। ये रिसर्च वर्क है कि गोबर आपका कितना कीमती है। आज इस बात की रिसर्च वर्क है कि हमारे मतलब बहुत पुराने पहले बोला वेदों में लिखा है, अब वेदों में क्या लिखा है ये नहीं, सवाल ये कि प्रैक्टिकल में आज क्या हो रहा है। लोग तो चांद पे पहुंच गए, लोग पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करने की और आगे नए नए ग्रहों पे जाने की सोच रहे हैं। हम अभी पीछे जा रहे हैं, अंधकार की तरफ जा रहे हैं। ये जो डंका बज रहा है ये कुल मिला के मूर्खता का डंका बज रहा है, विकास का डंका नहीं बज रहा, ये बुद्धिमत्ता का डंका नहीं बज रहा। और दुनिया जो है वो बुद्धि विवेक से पूरी दुनिया पे, आज चाइना को पूरी दुनिया दबाने में लगी है। लेकिन अब चाइना ने तो, आप कमाल की बात देखिए ना, अमेरिका ने कहा कि हमने इसका टैक्स लगा दिया 145% चाइनीज़ उत्पादों पे। और इसके प्रचार के लिए मतलब अमेरिका ने टी शर्ट छपवाई। मतलब कहाँ से छपवाई? वो कई लाखों की संख्या में टी शर्ट छपवाई सस्ते में, चाइना से बन के आई कि चाइनीज़ माल का बाइकाट, और चाइना से बन के आई टी शर्ट के माध्यम से हो रहा है। मतलब चाइना दोनों तरफ से बाहर का गेम खेल गया। अब इस तरह का डंका जो है वो बज रहा है हिंदुस्तान में भी। चाइनीज़ चीज़ों का हम बाइकाट कर रहे हैं और चाइनीज़ ही माल को हम हिंदुस्तान में अपना अलग से उसका ऊपर मार्का लगा के उसको हम बेच रहे हैं। तो ये इस तरह का डंका मूर्खता का बज रहा है, इससे अलावा कुछ दुनिया में जा रहा है। साथियों, इन दोनों किसान नेताओं के साथ साथी राजकुमार, हम जो आपने अभी अभी जो बात बताई, कल राजस्थान सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि बड़े जो शहर है जयपुर, जोधपुर, उनमें किसान सिर्फ एक ही पशु रख सकता है, उसके पास पर्याप्त जगह, उसका एक पैमाना बनाया है और वो पर्सनल यूज के लिए रख सकता है और उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसका दूध जो है वो बेच नहीं सकता। क्या ये सब इसी कानून के अनुरूप चल रहा है? देखिए, आपने ये जो पशु वाला कहा, हमने पहले भी कहा कि ये जो जब आपके डेयरी फार्मिंग का सवाल आ रहा है तो पूरी दुनिया में अमेरिका का ये एक प्रेशर है कि हमारा जो जितना भी डेयरी का प्रोडक्ट है वो भारत में जाए। और इसलिए आज आप देखोगे हर गांव में, हर छोटी सी छोटी दुकान पे
आपको 10 रुपए का दूध का पाउच मिल जाएगा। और वो पाउच क्या है कि आपने 5 दिन तक उसको धूप में नहीं लगना चाहिए, उसको आपने छाया में रख दिया, वो दूध खराब नहीं होता। तो वो जो चीज़ें हैं वो बैकडोर से किस किस रूप में लागू हो रही हैं, क्योंकि हमारे तक बहुत सी सूचनाएं सरकार की ऐसी हैं कि आम जनता तक वो नहीं पहुंचती, वो बहुत बाद में पहुंचती हैं। और ये जो सारे के सारे आप इसको कुल मिला के इसको जब पूरे प्रीपेक्स में देखोगे तो ये सारी की सारी नदियों की धार एक ही तरफ है कि उसी समंदर को हमने भरना है, और वो समंदर है अमेरिका। वो पूरे देश की जनता को खेतों से पशु उजाड़ना, घरों से पशु उजाड़ना, खेतों से किसान को उजाड़ना, फैक्ट्री से मजदूर को उजाड़ना, सबको उजाड़ के सड़कों पे लाने का जो काम है वो इसीलिए किया जा रहा है। और ये जो तरह तरह के फार्मेट्स विकसित कर रहे हैं कि आप इतने पशु से फालतू नहीं रख सकते। अब यूपी की सरकार ने तो एक नया फरमान जारी किया, आप तमाम लोगों को पता होगा कि जिसके घर में पशु, अगर पशु के ऊपर अगर किसी ने पंखा लगा दिया तो बोला उसके कॉमर्शियल चार्जेस लगेंगे। मतलब ये नई तरह, ये सारा के सारा वही है कि किसान को आत्मनिर्भर करने का तरीका पशुधन भी एक सहायक है, और उस पशुधन को नहीं उजाड़ते तब तक किसान इस खेती को छोड़ के नहीं भागने वाला। खेती को छोड़ के कैसे भागे, उसके सारे तरीके ढूंढ रही है सरकार, वो तरीकों में लगी है। और अभी आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में तो जो एग्रीकल्चर का बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल खेती बाड़ी का, वो तो बहुत ऊंचा है, 8-9 रुपये पर यूनिट से ऊपर है। मतलब काउंटर रेट 9 रुपये बता रहे हो आप। अब ये बड़ा सवाल है कि वहाँ इतना ऊंचा रेट है, तो वो सारा खेती को उजाड़ने का मसला है। तो ये सवाल सारे के सारे, जब मैंने कहा ना कि सारी नदियों की धार इकट्ठी करके एक ही समुद्र में उड़ेलने की है कि उस समुद्र को भर दो, और वो समुद्र है अमेरिका का। नीतियों के माध्यम से उसका जो जैसे कहेगा वैसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। यही नीतियों का परिणाम खेती के ऊपर प्रभाव आएगा, हम ये समझते हैं। धन्यवाद साथियों, हमारी ये बातचीत आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।